So dear students, in the previous class we were discussing, we have done the questions till here. Okay, 5.2 we have done almost. Okay, and we have done the question number 17. Okay, now do the question number 18. It has been given that the sum of the fourth and the eighth term of an AP is 24 and the sixth and the 10th term of AP is 44. Then what would be we have to simply ask that what would be the three terms of this AP? Sir, can you tell me the sum formula? It is simple. Uh, you have to write it like this way, like uh, in the fourth and the eighth. So you have to write here that the number of terms is n2 plus n1 will be equivalent to into d will be equal to an plus n1 a and n2 plus a and 1. So here it is given that the fourth and the eighth term of the AP. Okay. So the fourth and the eighth term of AP is being given to you. That is सम के लिए हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे सो यहाँ पर आप लोग को ना एलिमिनेशन मेथड्स को यूज करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ओके इफ यू हैव टू राइट हियर दैट इट इज बीइंग गिवन टू यू लेट मी डू दिस वन क्वेश्चन ऑन दी बिगिन करते हैं यहाँ पर आपको गिवन है कि a plus 3d थर्ड फोर्थ टर्म a plus 3d is means if you add these two terms okay it is being given to you that the fourth term is a plus 3d and the eighth term would be a plus 7d. It is being given to you. Then it would be equal to simply 24. And here it is being given that you can further solve it like this way that 2a plus 10d is equals to 24. Take the 10 as common, 2 as common. When you take the 2 as common, you will write here a plus 5d is equals to 24. And then you can cut this 2 with this one, you will write here a plus 5d is equals to 12. So here a plus 5d is 12. Now similarly calculate the value of a, means a plus 6 term would be a plus 5d, a plus 5d plus the 10th term would be a plus 9d. The sum of these two terms is actually given 44. Now solve these values and calculate the value of a and b. Sir, I found it. What's the answer? The first three APs are minus 16, minus 11, and minus 6. Minus 16, minus 11 and minus 6.
minus 6. Yes. Here you will find that the 2a again, 2a plus 16b is equals to 44. And taking the 2 as common, you will be able to write here a plus 8d is equals to 44. Now you cut it, you will find that a plus 8d is actually equal to 22. So the fifth term, this is the sixth term of an AP, and this is the ninth term. A plus 8d is ninth term, and this is the sixth term. So if I have told you that if the two terms are given to you like this way, so what you need to do is you need to subtract them. So first of all, you need to, let me solve this question here. Okay, so you have this value here, and that is actually you have this value that a plus 5d and a plus 8d is 22. So if a plus 8d is 22 and a plus 6b is actually 12, then you subtract these two, minus minus minus, this a and a will cancel out. This 8a minus 6b, you will get plus of 2d, and here 22 minus 12, you will get 10. So you will get b is equals to 5. B is equals to 5. Now putting the value of d in this equation, you will get a plus 5b is equals to 12. Now d is 5, so we have to write here a plus 5 into 5. You will find here 12. Thus we get a is equals to 25. 25 minus 12. This will 12 minus 25. Okay, so a would be equal to 25. You will get 3, and then it will be 13. A is equals to minus of 13. And you are saying it was 16. I did wrong thing. You did. So a is 16. A, the first term is a, that is equals to minus 30. The second term will be a plus d, that will be minus 13 plus 5, and that would be minus of 8. And the third term would be a plus 2d, that would be minus of 13 plus 10. So you will get here minus of 3. These are the first three terms of this. Okay, got it? Clear? Clear, everyone? Yes. sir. Asila, got it? Clear? Yes, sir. Now moving to the next part of this question is, now let's try some important questions, okay, from this chapter. So it's been long that we have not discussed these important questions from this chapter. So let's do this. Okay. Okay. Now we have to solve a question here. Okay, it is being given to you that. Hello, sir. Yes, beta. Hello. Hello, Kevin. How are you? I'm Where fine, are sir. you? How are you? I'm also fine. So here we have a question that if the mth term and nth term of an AP is 1 by n, and
1 by m respectively. So is this a question? That is the question. Okay. If the mth term and the nth term of an AP is 1 upon n and 1 upon m respectively, show that its mnth term is 0. So whenever we are going to solve these problems, you have to keep in mind that whenever it is being given that if the mn term of an AP is this, P and Pth term of an AP is Q, if the means such type of problem which we are going to have the A, B, C, D like this one, okay, not the numbers. And in such type of questions, we need to calculate the value of A and B. We need to calculate the value of A and B. A और D की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, बस उसके बाद आपको पुट कर देना है। A और D की वैल्यू को आपको पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ओके, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, सो आपको गिवन है कि mnth टर्म, यानी कि अगर कोई mnth यानी am, यहाँ पर mnth लिखा हुआ है, इसका मतलब m नंबर पर यानी m पोजीशन पर कोई एक टर्म है, उसकी वैल्यू जो है 1 अपॉन n, और an पोजीशन पर यानी nth पोजीशन पर जो n पोजीशन होगी, कोई भी n पोजीशन हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वहां उस पोजीशन पर जो टर्म है दैट इज 1 अपॉन n. इट इज बीइंग गिवन टू यू बेटा. नाउ ये आपको गिवन है, ओके. तो यहाँ पर n की इस वाले टर्म में बताइए मुझे, इस वाले टर्म में n की वैल्यू क्या है बताइए बेटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन दिस टर्म? क्या होगी बताइए, n की वैल्यू क्या है, n की पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है? नहीं समझ आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? डोंट अंडरस्टूड? आई एम आस्किंग हियर दैट कि इस वाले टर्म में m की n की पोजीशन क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है? नंबर ऑफ टर्म इस वाली इक्वेशन में है m. जैसे हम लोग लिखते थे ना कि a प्लस 6 यानी 6 टर्म लोग को निकालना होता तो हम लोग लिखते थे a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर जो वैल्यू होती थी वही हमारा n होता था. अगर हम लोग उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर भी हम लोग n लिखेंगे. तो हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म प्लस, ठीक है, ये दोनों एक ही एपी की बात चल रही है, टर्म ऑफ एन एपी, एक ही एपी की बात चल रही है, अलग अलग एपी नहीं, तो फर्स्ट टर्म दोनों के लिए सेम ही होगी और कॉमन डिफरेंस भी दोनों के लिए सेम ही होगा. सो एमएन टर्म की जगह पर मैंने लिख दिया 1 अपॉन n, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 1 अपॉन n आपको गिवन है, और यहाँ पर आपको लिखा है a प्लस. अब मैं अगला स्टेप क्या लिखूंगा बताइए, यहाँ पर क्या लिखूंगा बताइए, m माइनस 1 लिखूंगा कि n माइनस 1 लिखूंगा बताइए? m minus 1. Yes, it will be written as m minus 1. And here again a plus, इसके लिए n यहाँ पर n ही है तो n minus 1 into d. Okay, got it? समझ आया? हम लोग को a की वैल्यू निकालनी होती थी, जैसे हम लोग बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम लोग को गिवन होता था कि 6 टर्म जो है वो a plus 5d होता है और इसकी वैल्यू आपको 7 गिवन है सपोज कीजिए, और 4 टर्म है वो a plus 3d होता है, उसकी वैल्यू आपको सपोज कीजिए कि 4 गिवन है. सो हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते थे. तो वही काम हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, वी आर डूइंग द सेम. हम लोग वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाली इक्वेशन को, सिर्फ इतने पार्ट को हम लोग इस m माइनस n को छोड़ देते हैं. तो हमारे पास वैल्यू में जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे पास माइनस, ये भी हमारे पास माइनस, और ये पूरी टर्म हमारे पास ये भी माइनस हो जाएगी. यानी मैं इसको पूरे को यहाँ पर माइनस मान लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको सॉरी ऊपर वाले टर्म को नहीं करता, मैं नीचे वाली करता हूँ. सो माइनस माइनस माइनस. ओके, तो ये हमारे पास प्लस 1 था, ये माइनस का हो चुका है, ये प्लस का 1 अपॉन m था तो ये भी माइनस का हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास प्लस m माइनस 1d सॉरी प्लस n माइनस 1d था तो ये भी हमारा माइनस का हो चुका है. तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन n ऊपर वाला माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखोगे m माइनस 1 इंटू डी, पहले वाला माइनस का साइन लगाओ क्योंकि यहाँ पर अब माइनस करना है आपको, n minus 1 into d. Okay. Now when you take the LCM of these two terms, you will get here
कि m into n is equals to m minus n is equals to, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे, ओपन करेंगे, सो आप इसको एक काम कीजिए, ओपन ही कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यू विल गेट हियर कि md माइनस d अभी, ठीक है, और ये माइनस का साइन मैं ऐसे लगा रहा हूँ, और यहाँ पर माइनस वन अभी भी लगा हुआ है, और मैं खाली d से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी से और इसके से, सो यू विल राइट हियर nd minus d. When you open the bracket here, you will get here m minus n upon mn is equals to nd minus d minus nd plus d. Minus d and plus d will get cancelled out. Now you can take the LCM from these two terms, md और इसमें से आपको ले लेंगे LCM. तो जब आप LCM में मतलब कॉमन ले लेंगे, सॉरी LCM बोलो, you will get m into n upon mn, and they take the d as common from both. So when you take the d as common from both, you will write here m minus n upon, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे, बस यही बचेगा. अब यहाँ पर m minus n यहाँ पर भी है और m minus n यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर आपको m minus n मिल चुका है, ठीक है. तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल फाइंड हियर दैट कि आपकी जो d की वैल्यू है वो आई है 1 upon m into n, एंड d की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी दी 1 upon m, ठीक है. d की वैल्यू आपने कैलकुलेट की. अब आप किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में आप d की वैल्यू को पुट कर दीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, यानी कि आप समझ लीजिए कि आपको 1 upon n is equals to a plus m minus 1 into 1 upon md, ये आपको गिवन है, इसमें आपने d की वैल्यू पुट कर दी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू पुट कर दी आपने यहाँ पर, सो d की जगह पर आपने 1 upon m into n into n, ओके. सो ये d की जगह पर आपने d की वैल्यू पुट कर दी. अब जब आप इसको यहाँ पर मैं करता हूँ, ये a है आपके पास, प्लस जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका m, यानी कि m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 1 upon n बचेगा, यानी कि m when multiplied by 1 upon m into n, तो ये कट जाएगा, आपके पास खाली m बचेगा. और यहाँ पर जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, you will get here 1 upon minus m into n, और ये आपके पास 1 upon n पहले से, ये प्लस का 1 upon n और ये भी प्लस का 1 upon n, सर जाके माइनस हो जाएगा. a की वैल्यू आपके पास आई है माइनस 1 बाई n इक्वल्स टू 0, तो ये उस तरफ चला जाएगा तो यू विल गेट इट पॉजिटिव, तो a की वैल्यू भी आपकी सेम आई है m into n, जो b की वैल्यू है वही आपकी a की वैल्यू भी है. तो आपको प्रूव करना है कि इसकी mn टर्म जो होगी वो 0 होगी. तो हम लोगों ने पहले क्या किया, कितने भी क्वेश्चन इस तरह के होंगे, आपको सबसे पहले a और d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर आपसे जो पूछा जाए उस वैल्यू में आपकी वैल्यू को पुट कर देना. जैसे आपसे पूछा गया है शो दैट इट्स mnth टर्म जो होगी दैट वुड बी कंसीडर्ड एज 0, ये आपको बताना है, आपको शो करना है, प्रूफ करना है आपको कि mnth टर्म जो है वो 0 है. तो mnth टर्म इस ap का कितना होगा, यू कैन राइट इट लाइक दिस वे दैट a mn किसी भी ap का क्या होगा, दैट वुड बी फर्स्ट टर्म प्लस n, यहाँ पर n जो है वो पूरा m into n है, तो m into n minus 1 into d, ये वैल्यू आप पुट कर देंगे. अब कुछ नहीं करना आपको, a की वैल्यू आपने 1 upon m into n निकाली, वो भी निकाल रख दीजिए यहाँ पर m into n minus 1, और d की वैल्यू भी आप 1 upon m into n रख दीजिए. यहाँ पर जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get 1 upon m into n प्लस, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे you will get plus 1, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get minus 1 upon m into n, minus 1 upon n into n और प्लस 1 upon m into n, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पर आपके पास आएगा mn is equals to 1. अच्छा, हम लोग को 1 ही प्रूफ करना है, 0 को निकालने के लिए, इस 0 को निकालने इज 1. बहुत सारी जगह पर 0 प्रूफ करना होगा तो ध्यान में वही रखना, फिर भी हम इस 1 ये प्रूफ करना था आपको, आपने कर दिया प्रूफ. ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m into n is equals to
पॉजिटिव 1। समझ में आया? समझ आया आपको क्वेश्चन या फिर से समझाऊं? Yes, sir. Got it. गॉट इट एवरीवन? इसको एक Yes, बार sir. कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए इसको, एक एक स्टेप को ध्यान से कॉपी कीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे एक बार प्रूव करने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन में जहां जरूरत पड़े आप देखिएगा, एक बार ट्राई कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ these questions are important. So what's the answer for this? सभी ने कॉपी कर लिया? तो किसी को दोबारा पीछे वाली स्लाइड को देखना है तो प्लीज लेट मी नो।
Done. Done, sir. Okay. Done, sir. So अभी हमारे पास कुछ एक इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं. So let's discuss that questions also. It is being asked कि आपको 22 then 21 is 2 by 3 and then 21 past 1 by 3 and then 21 and so on. Question है आपके लिए, which term of this AP will be its first negative term. Which term means कौन से नंबर की, यानी n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. ओके, will be its first negative term. आप कैलकुलेट करके कोई आइडिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, आप मान लीजिए कि an आपको 0 कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि 0 तो उसका होगा नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि 0 इज एपी का एक टर्म है. ओके, तो सपोज कीजिए 0 पर आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब आपको n की वैल्यू, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको n की वैल्यू पूरी नहीं आएगी, क्योंकि 0 इसका एपी नहीं होगा, किसी वजह से 0 होता है तो n की वैल्यू पूरी फुल मतलब एक कांस्टेंट नंबर में आती है, जैसे 7 8 100 जो भी नंबर होगा उसमें n की वैल्यू आएगी. और 0 इस एपी का टर्म नहीं हुआ तो वो डेसिमल्स में आएगी, जाहिर सी बात है. तो मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि 27th टर्म मतलब n की वैल्यू हमारे पास आई है 27.25 करके कुछ ऐसा है. 27.25 इसकी 0th टर्म सपोज कीजिए करिए, तो एक्चुअली में 0th टर्म 20, इसका मतलब हुआ कि इसकी 27 टर्म जो होगी दैट इज पॉजिटिव एंड 28 जो होगी वो नेगेटिव होगी. तो 27 कोई भी एपी है, 0 मैं बोल रहा हूँ कि ये टर्म किसी एक एपी का दैट इज 27.25, तो यहाँ पर जो टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी. 26 टर्म 27 टर्म 25 टर्म, अगर मैं एपी को ऐसे, क्योंकि एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सपोज कर लीजिए, या सीधा ही समझ लो कि भाई यहाँ से कोई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुंचे 27.7, तो वो टर्म 0 है. उसके बाद जो भी टर्म आएगी वो 28 टर्म होगी, और 28 टर्म विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. सो जो भी डेसिमल में वैल्यू आएगी आपकी, जैसे सपोज कीजिए आपके 20 कुछ भी वैल्यू आई, जो भी वैल्यू डेसिमल्स में आएगी बस उसको आप उसका अगला नंबर जो होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो ये आपका a दैट इज 22. d आप कैलकुलेट कीजिए कितना है, ठीक है, खुद से इसमें से इसको माइनस कीजिए या इसमें से इसको माइनस कीजिए, ठीक है. d आप कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आपको an 0 को कंसीडर करते हुए n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. फटाफट से सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा.
Sir, I don't understand this question. Yes. Have you calculated? I don't understand this question, sir. सर me as Don't well. know? क्वेश्चन I समझ don't नहीं आया sir. क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो, ये आपको एपी गिवन, आपको पूछा गया है कि इसकी पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक एपी, ठीक है, और मैं तो कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि हम लोग 20, पहले 20, देन 17, देन 14, ओके, ऐसे करते हमारे पास एक एपी है, हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं। अब पूछा गया है कि इसकी कौन सी टर्म सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो मान लेते हैं कि इसकी जीरो को एक टर्म है, वो परफेक्ट टर्म तो नहीं होगी क्योंकि आप इसको करके लेके आएंगे तो जीरो तो उसकी परफेक्ट टर्म नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद 13 होगा, सॉरी 13 बोल रहा हूँ, 11 आएगा, 11 माइनस 3 विल गेट 8, देन 8 के बाद आपको मिलेगा, 8 के बाद आपको 5 मिलेगा, 5 के बाद आपको 2 मिलेगा, 2 के बाद डायरेक्ट -1 है, जीरो है। इन कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कि जीरो की कोई टर्म है, और वो जीरो को कंसीडर करते हुए हम लोग मानते हैं कि बताइए वो टर्म का नंबर कौन सा होगा जिस पर जीरो प्लेस होगा। तो हम लोग an इज इक्वल्स टू a20 प्लस n हम लोग को निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं दैट इज -3 सपोज, और an हम लोग कंसीडर कर लेंगे दैट इज 0, 0 के लिए हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि 0 कौन से नंबर पर आएगी। तो 20 प्लस n -1 यानी इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये लोग क्या, ठीक है, चलो प्लस लग गया तो पहले इसकी कर लेते हैं 3 and then minus of 3, okay? And you will get this is 23 and this 23 will come to plus 23 होगा, तब जब इस तरफ आएगा तो it will become minus of 23 equals to minus of 3, and when you cut it you will get n is equals to 23 by 3। अब n अगर जीरो की परफेक्ट टर्म होती तो वो एकदम डिविजिबल नंबर होता, यहाँ पर डिविजिबल नंबर नहीं है, बिल्कुल भी। तो भी हम लोग क्या करेंगे, 23 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 7s are 21, you will get 2, okay, and then point, then 0, 3 6 are 18, so 7.6 from is AP की क्या कंसीडर की जाएगी, that would be considered as the 0th term for this AP, इस AP की 0th term होगी, okay। so अभी हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो टर्म है that is first term, then second term, then third term, then fourth term, then fifth term, then sixth term, then seventh term। तो सेवेंथ पॉइंट का मतलब क्या है, 7.6 का मतलब कि 7 टर्म इसकी पॉजिटिव है, उसके बाद जो 8 वाली होगी, क्योंकि पॉइंट्स तो हो नहीं सकता कभी भी टर्म में, तो इसका मतलब 7.6 पोजीशन पर 0 है, उससे अगली वाली टर्म जो होगी यानी उसको अगर पूरा कर देंगे आप तो 8th टर्म विल बी कंसीडर्ड एज इट्स फर्स्ट नेगेटिव। जो भी डेसिमल में आपको आएगा 7.6 आया या जो भी पॉइंट होगा बस उससे अगला नंबर जो होगा दैट वुड बी कंसीडर्ड 8 हो जाएगा, इससे अगला नंबर मतलब 8 है। 7 मतलब उसको अगर आप पूरा करेंगे तो अगर आपका 7.2 होता तब भी आप इसको 8 ही करते, 7.1 आता तब भी आप इसको 8 ही करते, तो जो भी होगा वो अगला वाला टर्म होगा, ओके। और मतलब 7th टर्म इसकी पॉजिटिव है और उससे अगली टर्म जो होगी नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। समझ आया, गॉट इट, समझ आया? Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को भी करते हैं हम लोग को। डी कितना गिवन है, तो डी हम लोग को पता है कि सर मेरा आंसर नेगेटिव आया है। n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यस नेगेटिव तो नहीं आ सकती। तो यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करेंगे तो यू विल गेट, आपको खुद भी दिख रहा है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको पहले आपको इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देना पड़ेगा और फिर आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ओके। सो यू विल गेट हियर, या फिर आप इसमें से 21 चलिए कर ही लेते हैं हम लोग, वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 21 और 3 63 प्लस 2 विल गेट 65/3। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 65/3, so here you will find that it is 65/3 and इसमें से इसको माइनस कर दीजिए -20, ओके। या फिर आप चाहें तो
इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 63 and 1 64 हो जाएगा. This is third term and second term. So third term and second term को minus कर दीजिए. We will get third term is actually 64 by 3. Third term minus second term. You will get the difference, common difference, and then we get the here 3s 64 minus 65. You will get 1 by 3. Difference आपको किसमें करना है? 1 by 3 करना है. So 1 by 3 is the difference. So you have to write here that b will be minus का 1 by 3. Minus 1 by 3. an आप कंसीडर कर लीजिए 0. सर फिर से बोल सकते हो? हम्म? फिर से बोल सकते हो? हाँ बेटा, ये हम लोगों ने इसको वैसे किया. 63 को when you multiply it by 3, you will get here 63. 63 plus 2, you will get 65. Here you will get 63 plus 1, 64. Here it is 64 by 3 and it is 65 by 3. When you subtract this third term minus second term, then you calculate here the 64 minus 5, 65 by 3, you will get minus 1 by 3, and this is a common difference. Means ओके सर. the term के बीच में जो difference है वो common difference. हमारे पास b की वैल्यू आ गई है. अब आपको an को an आप 0 कंसीडर करेंगे. 0 को आप कंसीडर करके करेंगे. So you will find here that a is actually 22. A plus a n is equals to a plus n minus 1 into b. आप कंसीडर कर लीजिए. 0 आपको रखना है प्लस a की वैल्यू 22 है. Apart from this one, n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. Okay, and you need to calculate, and b is minus of 1 by 3. So bring this 22 to this side. You will get here minus of 22. Okay, or and here it is n minus 1 and it is 1 by minus of 1 by 3. Okay, this minus sign and minus sign is in common, so it will be get subtracted because we are multiplying, because this is in the whole bracket with this one. So you can cancel out this minus sign and this bring this 3 to this side. So we get here 22 into 3 is equals to n minus 1. Okay, n minus 1, and you will find here it is 66. 66 equals to n minus 1. So this will become to this one. Okay, and that would be n minus 1 is equals to 66. So you will get here that n is equals to 67. Here you find that we are getting the exact value of n. We are getting here the exact value of n. Okay, and in case beta, in case if we are not getting the value of x, n की वैल्यू परफेक्ट नहीं होती, तो फिर हमारे पास डेसिमल्स में आती है. अभी ये 67 वैल्यू जो आई है दैट इज एग्जैक्ट 0. मतलब अगर आप इस एपी को करते जाएंगे तो इसकी एक टर्म 0 भी होगी. 0 और 0 टर्म 67 टर्म ये हमने 0 कंसीडर किया, तो इसकी नेक्स्ट वाली टर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी. तो हम बोलेंगे कि that 68 term will be its first negative term. First negative term. Got it? समझ आया? Sir, why 68? Because 67 is exactly 0. Sir, what? मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने n की वैल्यू जब 0 को कंसीडर करके निकाला कि 0 इसकी कौन सी टर्म है, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज 67. तो 67 इज एग्जैक्टली the 0th term of this AP. 0 तो नेगेटिव नहीं होता ना. Okay. Okay, sir. Okay, so that would be considered as 68. Okay, Okay, sir. is there any doubt? No, that's it. Please copy this one. In case if 0 is not the term of this AP, अगर 0 नहीं होती इस AP की टर्म, तो फिर क्या? तो फिर सिंपल ये हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते, मतलब इसकी वैल्यू जो भी पॉइंट्स में आती फिर हम लोग उसको होल कर देते हैं. मतलब अभी 67.0 भी आया तो तभी भी हम लोगों ने आगे करके लिखा. अगर 67.2 67 पॉइंट कुछ भी करके आता है हम लोग उसको 68 ही लिखते हैं. ओके, गॉट इट? तब n की वैल्यू पूरी नहीं होगी. अगर 0 इस AP की टर्म है तो n की वैल्यू एग्जैक्ट आएगी. अगर 0 इस AP की टर्म ना होती तो हमारे पास डेसिमल्स में n की वैल्यू आती. ओके, प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन.
Sir, done. Done, everyone? Yes, sir. Okay. Let's move further. Here I'm going to give you another question, similar to the previous one, somewhat similar to the previous one. Okay, it is being given to you. It is being given to you. M times the mth term. If M times the mth term of an AP and n times the nth term of AP and nth term of this AP are equal show that its m plus nth term is 0. To prove that its m plus nth term is 0. बेटा इस तरह के क्वेश्चन में मैंने फिर से बोला जरूरी आपको एम वाले क्वेश्चन आएंगे, कितने भी क्वेश्चन उनकी सिर्फ एक ही ट्रिक है कि आपको उनको ओके यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, बस यही आपकी इसमें जीत है, मतलब यू हैव टू डू लाइक दिस। ओके गॉट इट। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द m टाइम्स द mth टर्म, तो पहले तो हम लोग mth टर्म क्या होगी सीबीए, तो दैट वुड बी इक्वल टू the mth, what is the mth term of the AP? What is the mth term of the AP? That would be a plus m minus 1 into d. ये स्टेप समझ आया? Yes, yes, sir. और इसी तरह से nth टर्म किसी भी AP का क्या होगा? a plus N minus 1, M minus. into d. N minus 1. वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर मैं दोनों की यानी mth टर्म को m से मल्टीप्लाई कर दूं और nth टर्म को n से मल्टीप्लाई कर दूं n टाइम्स द nth टर्म, then they both will become equal. तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, they both will become equal. तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो करिए इनको इक्वल। तो हम लोग को ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो चलो करते हैं। ध्यान समझना बेटा एक स्टेप को, ये पूरे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और ये भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। सो इन दोनों को हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। ओके सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि m ब्रैकेट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी ओके इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक समझ आया सबको? यस सर। अब अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए। आपको याद रखना है कि आपको a और d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू ब्रिंग आउट द वैल्यू ऑफ a एंड d। सो ये आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट हियर am प्लस, यहाँ पर मैं m और d को एक साथ कंसीडर कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d इंटू m ब्रैकेट m माइनस 1। ये बात समझ आई कैसे हुआ? फिर से बोल सकते हैं? बेटा ये m है ना, इस a के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इस d के साथ भी, तो d और m एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, यानी d और m एक साथ, क्योंकि d भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और m भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा पूरे, तो दैट यू कैन राइट इट d इंटू m। जैसे सपोज कीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2 प्लस 3 2 प्लस 5 इंटू 3 और मैं उसकी मल्टीप्लाई 2 से और करा रहा हूँ, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस वे के 3 इंटू 2 ब्रैकेट 2 प्लस 5, आई कैन राइट इट लाइक दिस वे। बात तो वही है ना, तो मैंने यहाँ पर d और मिला करके रख दिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब हम लोग करेंगे फिर से इसको, यू कैन राइट हियर an प्लस एंड बाकी से फिर से dn ब्रैकेट n माइनस 1। ओके नाउ यू हैव टू राइट दिस लाइक दिस वे। अब कुछ नहीं,
ओके, अब कुछ नहीं करना है। फिर से आपको ध्यान रखना है कि आपको ए की और डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो एक काम कीजिए, आपको ए चाहिए तो आप ए को इस तरफ लेकर आ जाइए ताकि आप ए में से ए को कॉमन ले लें। सो आप ए को एक तरफ लेके आ जाइए और डी को दूसरी तरफ लेकर के आ जाइए। ओके, सो जब आप इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि ए एम माइनस ए एन इज इक्वल टू डी एम ब्रैकेट एम माइनस वन माइनस डी एन ब्रैकेट एन माइनस वन। ओके, अब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, 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 ओपन करेंगे। और यहाँ पर आप ये पूरा m नीचे नहीं है, पूरा मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, कभी आप सोचें कि ये अलग से, तो जब आप a कॉमन ले लेंगे, दिस इज प्योर अ नंबर, तो आपके पास m माइनस एन बचेगा इज इक्वल्स टू, आप जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड इट डी एम स्क्वायर माइनस डी एम। ओके, और यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस डी एन स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस डी एम डी एन स्क्वायर माइनस डी एन। यहां तक सबको समझ आया? Yes, यू गॉट sir. इट? सर जी बोलिए केविन। फिर से बोल सकते हैं स्टेप, कौन सा वाला? ये वाला ओके, जो अभी। अभी मैंने इसमें a को इस तरफ लेके आ गया तो ये माइनस का हो गया, और मैंने ये d प्लस एन माइनस वन था। अरे यार, मैं इसको इस तरफ लेके आया ना, सो ये उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव रहेगा। मैं छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, अच्छा हुआ केविन ने सही टाइम पे पूछा। यहाँ पर मेरे को m n करना है, और मतलब यहाँ पर मेरे को डी एन जो मेरे पहले से लिखा हुआ था तो वो मुझे लिखना है यहाँ पे डी एन ब्रैकेट एन माइनस वन, और ये पूरी टर्म मेरी उस तरफ गई है तो ये माइनस में हो जाएगी डी एम ब्रैकेट एम माइनस वन। सो मेरे पास जो टर्म आएगी यहाँ पर, दैट वुड बी, ये वाली टर्म मेरे पास पॉजिटिव होगी। सो यहाँ पर मेरे पास होगा डी एन स्क्वायर माइनस डी एन, और यहाँ पर मेरे पास होगा माइनस डी एम स्क्वायर माइनस डी एन प्लस डी एन। समझ आया? समझ आया? यस सर, यस सर। ओके ओके, अब आपको m माइनस एन है और आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। a ब्रैकेट m माइनस एन इज इक्वल्स टू दिस, यू हैव टू कैलकुलेट d n स्क्वायर माइनस m। तो एक काम करते हैं हम लोग, m और n स्क्वायर वाले एक तरफ करते हैं और उनको एक तरफ कर देते हैं, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि d n स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस डी एन माइनस डी एन एन प्लस डी एम। टेकिंग द d एज कॉमन, हम लोग को डी एम स्क्वायर माइनस वन, तो ओके, सब में से हम लोग d कॉमन ले लेते हैं। सब में से d कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और माइनस n प्लस m, ओके, माइनस n प्लस m। और यहाँ पर हमारे पास जो चल रहा है वो साइड में चलता ही रहेगा ऐसे। नाउ वी कैन राइट इट लाइक d ब्रैकेट, this will become n square minus m square, so you can write it like this way, by opening the identity. Okay, you can take it like this way कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, you can write it m plus m bracket m minus n minus m, a plus b, a square minus b square होता है a, ये आपके पास आया एक, दूसरा आपके पास आएगा n minus m। ओके, अब यहाँ पर n माइनस एम है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, इन दोनों टर्म में से माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, तो आई कैन राइट इट लाइक, ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर वाला m मेरा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये और ये मेरे को टर्म कॉमन मिल जाएगी। ओके, सो आई कैन टेकिंग द माइनस वन एज कॉमन फ्रॉम दिस वन, यू कैन राइट इट, यू कैन मेक इट n पॉजिटिव और n नेगेटिव कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप इसमें से
इसमें से चेंज कर देते तो फिर यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव हो जाता, वो नेगेटिव। तो जैसे आपका दिल चाहे वैसे कर लीजिए। अभी मैं इसमें से -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा m पॉजिटिव, सॉरी n पॉजिटिव और -m नेगेटिव। ओके, वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वापस से n हो जाएगा, और वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव। अब इसमें भी n माइनस m है, और इस वाले ये पूरी एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, और ये पूरी एक टर्म है। तो इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? राइटिंग दिस वन, मैं यहाँ वाला पोर्शन फिर से लिखता हूँ कि a ब्रैकेट m माइनस n इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं d को कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ से d में से d और साथ में उसके क्या कॉमन ले रहा हूँ? n माइनस m, n माइनस m कॉमन ले लेता हूँ। सो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ इस टर्म में हमारे पास, जब मैंने इसमें से n माइनस m कॉमन ले लिया, तो मेरे पास सिर्फ m प्लस n प्लस m बचेगा, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ -1 बचेगा। अब हमें फिर से दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास है m माइनस n, और यहाँ पर है n माइनस m। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कि -a, ऐसे मैं ले लेता हूँ। ओके, -a इज इक्वल्स टू, अब मैं माइनस लूंगा तो फिर से ये n माइनस m हो जाएगा, इज इक्वल्स टू d ब्रैकेट n माइनस m इज इक्वल्स टू n प्लस m माइनस 1। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, डिवाइड कर जाएगी एक दूसरे को, क्योंकि ये तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में, इट इज लाइक जस्ट 2 into 3 मल्टीप्लाई बाय 2 into 3 into 4 समथिंग, इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, सो ये सब तीनों मल्टीप्लीकेशन में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यू विल गेट हियर माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू d ब्रैकेट n प्लस m माइनस 1। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपके पास a की वैल्यू यहाँ पर जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर -d या -1 के अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1 पॉजिटिव हो जाएगा, -n और -m, ये आपके पास a की वैल्यू आई है। दिस इज द वैल्यू फॉर a, ये आपकी a की वैल्यू है। इसी तरह से आप d की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन में d की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, और जब आप d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एंड यू पुट द वैल्यू ऑफ d, जब आप d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तभी भी आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा। ओके, गॉट इट? समझ आया? Yes, sir. अब आप कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे d की वैल्यू? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपको पहली इक्वेशन गिवन थी, उसमें आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। सो आपके पास पता था आपको कि a m टर्म आपको गिवन थी, होती है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, ए एम आपको नहीं पता ना? हाँ, नहीं पता। तो इस अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में इसमें इक्वेशन, मतलब ए एम टर्म आपको गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो आप इक्वेट कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना होगा, आपको वही इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा फिर से। आपको अब कैलकुलेट करना है ना, आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रूफ कीजिए कि इसकी a प्लस mnth टर्म इज 0, ये प्रूफ करना है। यानी कि आपको प्रूफ करना है एक्चुअल में कि a प्लस m प्लस n इंटू डी इज इक्वल टू 0, ये आपको एक्चुअल में प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। सॉरी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, ये बात आपको प्रूफ करनी है। और अभी आपने इतनी मेहनत करने के बाद आपने निकाला है कि a की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो आपने, अरे कहाँ गया, अरे यार खो गया, वेट अ मिनट। अरे
बेटा वो पूरा ही खो गया अब। पूरी स्लाइड ही मतलब सेव नहीं हुई है और पूरी स्लाइड ही हिल गई है। खैर मुझे याद है कि ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की थी। एक मिनट। ए की वैल्यू जो आपके पास आई थी दैट वाज, आप किसी ने लिखा है क्या वो? ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? Sir, I didn't write it. यू डिडंट राइट इट? No, sir. अरे यार, पूरा ही मिस हो गया, मतलब ये पूरा हमारा कट चुका है स्लाइड और एकदम मेरे से प्रेस हो गया, वो पूरा ही गड़बड़ हो गया। पता नहीं, मैंने पूरा सॉल्यूशन किया था वो सब गायब हो गया। खैर ये सब ऐसे अचानक से रफ में मैं कर रहा था ऐसे, कोई नहीं। शायद से ए की जो वैल्यू थी दैट वाज, ए की वैल्यू जो थी आपके पास दैट वाज, आई थिंक इट वाज 1 माइनस एम माइनस एन थी इंटू डी। ये वैल्यू ए की थी। मोस्ट प्रोबेबली दिस वाज द वैल्यू ऑफ ए। सो आपको कैलकुलेट करके देख लेते हैं अभी। ए, अब आपको कैलकुलेट करना था एम प्लस एन टर्म। किसी भी एपी का एम प्लस एन टर्म क्या होगा? ए प्लस एम प्लस एन। ये एन की पूरी वैल्यू होती है जो एन माइनस वन करके लिखते हैं ना हम लोग, तो ये पूरी एन है माइनस वन इंटू डी। अब ए की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करके देखिए एक बार क्या आंसर आएगा। इफ यू पुट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ ए यू विल फाइंड हियर ए माइनस एम माइनस एन। ओके ओके, और इंटू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप इसको डी को इस तरफ लिख लीजिए प्लस डी ब्रैकेट एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको, सॉरी डी वहां पर नहीं आएगा, मैंने डी इधर लिख चुका हूं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा, मल्टीप्लाई सब सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर आप इसमें से अगर आप माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो यू विल फाइंड दैट ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगी और यहाँ बन जाएगा आपके पास वन माइनस एम माइनस एन इंटू डी। माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो माइनस डी हो जाएगा ये, और ये पॉजिटिव टर्म विल बिकम नेगेटिव टर्म। नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल वन पॉजिटिव हो जाएगा आपका, माइनस एम हो जाएगा माइनस एन हो जाएगा, और ये पूरी टर्म एग्जैक्टली इसके सेम है। बस एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यू विल गेट जीरो। नहीं तो आप इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए, सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, सब सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल फाइंड दैट m प्लस n की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो एक बार आप उस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना, नहीं होगा तो मैं फिर से करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या था क्वेश्चन, कि अगर किसी एक एपी का I wrote the question, sir. you wrote the question, Yeah. if n times the mth term of an AP, n times, sorry m times the mth term of an AP is equals to n times the nth term of an AP, nth term of an AP, या फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकते हैं n times the an term of an AP. So you have to prove that its m plus n term is zero. ये प्रूफ करना था टू। इसमें आपने a की वैल्यू कैलकुलेट की थी, उसके अकॉर्डिंग करना था। ओके, समझ Okay, आया sir. सबको? ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइन दिस क्लास, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके Okay, sir. Thank you. ओके, चलिए। हेलो मिराज, हेलो मिलादुल्लाह, हेलो आमना, हाउ आर यू? Yes, sir. Hello, sir. How are you? आई एम आल्सो फाइन बेटा, व्हाट्स अबाउट यू? So I'm also fine. ओके, चलिए। So we have to study today. We were studying the chemistry, and in the chemistry we were discussing the मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। मोल मतलब स्टार्ट किया था हम लोगों ने। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओके चलिए शुरू करते हैं। सो बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था मोल। व्हाट इज मोल, बताइए क्या होता है?
मोल इज अ नंबर जो हम लोगों ने बताया था और मैंने पढ़ाया भी था आप लोग को कि जब हम लोग किसी भी कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट को लेते थे, यानी हम लोगों ने जब एटम का मास को मेजर करना था और मेजरिंग करते वक्त हम लोगों ने पता लगाया था कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिया था कि 1/12 मास, यानी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम को हम लोगों ने कंसीडर किया था। क्या क्या कंसीडर किया था बेटा? एज स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट कंसीडर किया था। ओके, ये कंसीडर कर लिया था। इसकी वैल्यू हम लोगों ने की थी 1 AMU। इसको हमने नाम दिया था कि आज से हम इसको बोलेंगे 1 AMU। तो हम लोगों ने देखा था कि इस 1/12 पार्ट को, जो आपने कार्बन का माना था 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, जिसको हम लोगों ने 1 AMU बोला था, ऐसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 16 AMU, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 16 टाइम्स द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू था, was equal to mass of 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम के बराबर था। ओके, समझ आया ये बात? इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे का निकाला। हम लोगों ने निकाला कि देखा कि 32 AMU was the mass of 1 sulfur atom, 14 AMU was the mass of 1 nitrogen atom, सल्फर, नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन का तो 12 ही हो जाएगा, तो देन 12 फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, 12 AMU for carbon, 1 AMU for hydrogen। ये एक एटम की बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन 2 एटम में एग्जिस्ट करता है, तो उसका टोटल मॉलिक्यूलर मास जो होगा दैट विल बी 2 AMU, एक मॉलिक्यूल का। इस तरह से हम लोगों ने और एलिमेंट्स का पता लगाया। सोडियम Na, 23 AMU was the mass of sodium atom। आयरन, 56 AMU was the mass of Fe, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, आयरन का। ठीक है, इस तरह से कैल्शियम का मास हम लोगों ने पता लगाया, दैट इज 40 AMU was the mass of calcium atom, 40 AMU कैल्शियम एटम के लिए। इसके बाद हम लोगों ने आगे पता लगाया कि 56, 40, देन आफ्टर क्लोरीन एटम is 35.5 AMU, it is for क्लोरीन एटम। ठीक है, तो अलग अलग एटम्स का हम लोगों ने इस तरह से मास को पता लगाया और हम लोगों ने उसको करके देखा। ओके, समझ आया? ये हमारे पास जो मास था वो एक्चुअल में कार्बन 12 के पार्ट के रेस्पेक्ट में था, यानी 56 AMU का मतलब हुआ कि 56 टाइम्स दी 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। यही तो मतलब हुआ ना बेटा? इज दैट Yes, हैव द sir. सेम मीनिंग? ओके, नाउ मूविंग फर्दर वी हैव दिस वन कि हमारे पास यहाँ पर ध्यान समझना, ओके, तो ये हम लोगों ने किया। अब तुम्हें ध्यान से समझना है वो ये है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम लोगों ने एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम को कैलकुलेट किया। वो कितना मास था? दैट वाज 1, और किसमें? ग्राम्स में। एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स इन ग्राम्स वाज कैलकुलेटेड, and it was 1 atom
of carbon 12 is कितने ग्राम था? उसका मास था 1.99 into 10 raised to the power 23 grams minus of 23 grams. सो जब हम लोगों ने इतना निकाल लिया तो हम लोगों ने क्या किया, ये एक एटम का था, लेकिन एक एटम तो हमारा पूरा एक एटम तो हमारा नहीं था स्टैंडर्ड यूनिट, तो इसका 1/12 पार्ट था, तो हम लोगों ने इसको 1/12 से कर दिया. 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम का जो मास था वो कितना है? दैट इज 1/99 in 10⁻³ divided by 12. So that become 1 and that becomes 1.6 into 10 raised to the power. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो you will get it as 1.6 into 10 raised to the power -24 grams. इतना हमारे पास आ गया. और यही जो वैल्यू थी 1.67 करके आया था, 1.67 into 10 to the power -24 grams. ये जो वैल्यू थी ये 1/12 कार्बन 12 एटम की थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? 1 AMU. सो हमें पता चल गया कि 1 AMU ग्राम्स में जो है वो कितना है? 1.67 into 10 to the power -24 grams. अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये एक एटम का मास है इतना. तो अगर मैं 1 AMU, सपोज करो मैंने बोला कि अगर मैंने 23 AMU किसी का मास लिया तो दैट वुड बी इक्वल टू 23, जो कि सोडियम के एक एटम का मास है, सोडियम के एक एटम का Na 23 AMU है. दैट वुड बी इक्वल टू 23 into 1.67 into 10 to the power -23. अगर मैं एक सोडियम एटम लेता हूँ, वन सोडियम एटम का जो मास होगा दैट वुड बी कितना होगा? दैट वुड बी 23 AMU होगा, जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो यू विल गेट इट 1.67 into 10 to the power -24 grams. ये ग्राम्स में आ जाएगा. तो अगर मैं इंस्टेड ऑफ अब मैं इस बात को ऐसे लिखता हूं उल्टा कि 23 into 1.67 into 10 raised to the power -24 ग्राम्स में होता है एक सोडियम एटम. तो मैं पूछूंगा कि 1 ग्राम में कितने सोडियम एटम होंगे? तो 1 ग्राम में इसको 1 करने के लिए मुझे सेम इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. सो दैट वुड बी, इधर भी मेरे को उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. दैट वुड बी 23 into 1.67 into 10 to the power -24. ये ऊपर चला जाएगा तो 1 ग्राम, या भी हम लोग इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है. तो अब मैं इसको, अरे मैं क्या करता हूँ, मेरे को 1 ग्राम नहीं चाहिए, मेरे को क्या करना है? मेरे को 23 ग्राम चाहिए. मतलब कि जितना इसका AMU में मास था अगर मैं उतना ही ग्राम में ले लेता हूँ तो 23 ग्राम में मेरे पास जो मास होगा 23 ग्राम, दैट वुड बी, इसकी भी 21 को मल्टीप्लाई किया 23 से तो ये 23 हो जाएगा, तो उधर भी हम लोग 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमारे पास 23 ग्राम्स पे कितना हो जाएगा? 1 into 23 into 1.67 into 10 to the power -24 into 23, and this 23 and this 23 will get cancelled out. You will get a value of 1/1.67 into 10 to the power -24, and that will be equivalent to 6.022 into 10 to the power 23. आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.022 into 10 to the power 23. यानी 23 ग्राम सोडियम के अंदर कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10 to the power 23. इतना कैलकुलेट करो, कॉपी करो फटाफट से, फिर आगे बताते हैं क्या नंबर है, कहाँ से आया, कैसे होता है सब, इसकी वजह.
डन। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। जब कॉपी हो जाए तो मुझे बताना, ओके। Sir, done. ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, जरा बताइए हमें क्या वैल्यू है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास एक नया कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग उसी ग्राम्स में, यानी सपोज करो 23 ग्राम हम लोग को सोडियम चाहिए, यानी 23 एमयू हमारे पास 23 एमयू इज द मास ऑफ one sodium atom, and 23 grams will be mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms. इसी तरह से किसी का भी आप ले लेंगे, if you are considering here that 14 mu is mass of one nitrogen atom, then 14 grams is the mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms का मास होगा। गॉट इट? समझ आया? समझ आया बेटा? Yes. Yes, sir. Now what you need to do here is अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। हमारे पास है 6.022 और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ओके। नाउ यू हैव टू अंडरस्टूड कि ये जो बार बार वैल्यू आ रही है इसको हम लोगों ने नाम दे दिया 1 मोल, दैट इज मोल। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया मोल, 1 मोल, कि इसको हमने एक नंबर दे दिया कि ये नंबर को हम लोग 1 मोल बोलेंगे आज से। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी एवोगाड्रोस नंबर। इसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में Na करके लिखते हैं, ओके। तो ये तो हम लोगों ने मान लिया। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 14 AMU में होते हैं एक एटम, 14 ग्राम में होते हैं 1 मोल, या इतने एटम्स। सो अगर मैं 7 ग्राम ले लूंगा तो मेरे पास होंगे 3.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ की पावर हाफ मत कर देना, याद रखिएगा ये बात, ये नंबर हाफ होता है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज हाफ मोल, 0.5 मोल। सो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे को निकालने होंगे, दैट वुड बी गिवन मास, जो भी मेरे को मास गिवन होगा, अपॉन द मोलर मास। और पिछली क्लास में मैंने मोलर मास और एटॉमिक मास में आपको डिफरेंस बताया था। मोलर मास एंड गिवन मास इज ऑलवेज इन ग्राम्स, ये भी ग्राम्स में होता है और ये भी ग्राम्स में होता है। नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे। याद रखिएगा ये बात कि गिवन मास इज आपको किस में लेना है, इन ग्राम्स, और मोलर मास भी आपको, ये तो होता ही है ग्राम्स में होता है। तो मोलर मास इज ऑलवेज टेकन इन ग्राम्स, क्योंकि ये मोल का होता है, मोल। एटॉमिक मास एक एटम का मास, मोलर मास मतलब एक मोल सब्सटेंस का मास। अब वो कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ओके। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स मुझे देते, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे को गिवन है तो मेरे को पता है, अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख का मतलब कितना हुआ, 1 दैट इज 1 लाख, दिस इज 1 लाख। तो मैं बोलूंगा मेरे पास 2 होंगे तो क्या बोलूंगा, 2 into 1 लाख। सो अगर मैं ये बोलता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स, मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ मोल्स, अगर मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई अगर मैं Na से कर देता हूँ, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर मेरे को कैलकुलेट करने कितने पार्टिकल्स होंगे, जैसे मेरे को 0.5 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 0.5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6.022 से कर दूं तो मेरे पास पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो सिंपल से नंबर ऑफ मोल्स
की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। अब इसकी जगह पर आप नंबर ऑफ मोल्स अगर नहीं गिवन है तो पहले निकाल लो, यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एन ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एक चीज और पूछी जाती है कई दफा, इनमें से कोई भी आपको अननोन क्वांटिटी गिवन होगी, बाकी की मतलब 2 क्वांटिटी आपको, जैसे यहाँ पर 3 है, इसमें से कोई 2 तो ये तो आपको पता ही है, इसकी वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। ये अगर नहीं गिवन है तो ये निकाल लोगे, सॉरी ये नहीं गिवन है तो ये गिवन होगा, ये गिवन होगा तो ये नहीं गिवन होगा, तो वो एक निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। खैर वापस आते हैं, कई दफा आपको लिखा रहता है कि हाइड्रोजन एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एटम्स का मतलब होगा कि हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है जिसमें आप हाइड्रोजन का मोलर मास जो लेंगे वो 1 ग्राम लेंगे। और बोला जाए हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस जो एग्जिस्ट करती है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तब उसका मोलर मास होगा 2 ग्राम। याद रखिएगा ये बात कि नंबर ऑफ मोलर मास डिपेंड करता है कि अगर बोला जाए कि N एटम्स, नाइट्रोजन के एटम्स की बात चल रही है, तो उसमें लिखा जाएगा जो भी नाइट्रोजन के एटम्स होंगे उसमें नाइट्रोजन का एटम की बात चलेगी तो नाइट्रोजन के एटम का मोलर मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मोलर मास होता है 14 ग्राम। लेकिन एन नाइट्रोजन गैस बोला जाए, नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस का मतलब होता है N2, और N2 मतलब 2 नाइट्रोजन के एटम, तो उसका मास होगा 28 ग्राम्स मोलर मास। इट विल बी द मोलर मास। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. पहले कैलकुलेट करो इसे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहले इसको कॉपी कीजिए। जब हो जाए तो मुझे बता देना। ओके। Sir, done. हाँ बेटा, एक मिनट। हाँ बेटा, डू क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चंस करना शुरू करिए आप। ओके, डू दिस एग्जांपल्स एंड देन आई विल गो इनटू
हुआ बेटा? डन? सब कैलकुलेट किया आप लोगों ने? हेलो, बस मिरादुल्लाह, मेराज एंड हामना, आर यू देयर? हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन कैलकुलेट किया 3.4? No. नहीं No. किया? हामना, यू डिड इट बेटा? 0.5 मोल ऑफ N2 गैस में कितना मास होगा? You have to calculate the mass. So आपको इस बार मास गिवन है, ओके? मोलर मास क्या क्या कैसे करेंगे? क्वेश्चन है सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भाई आपको नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला लिखना है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर आप 0.5 लिख दीजिए, जो आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.5। अब यहाँ पर मैं बोल रहा था आपसे कि N2 अगर बोला हुआ गैस तो फिर आपको मोलर मास रखना होगा गैस का, एंड दैट विल बी 28 इनटू गिवन मास, यानी ऑब्टेन मास हो जाएगा अभी, ऑब्टेन मास, ओके? दैट विल बी ऑब्टेन मास, ऑब्टेन मास। नाउ दिस व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वन, यू विल गेट हियर that 0.5 into 28 you will get is equals to the mass obtained, and that would be equivalent to 40 gram mass, okay? तो 0.5 मोल में 14 होगा। वैसे भी आप कह सकते हो कि एक मोल में होते हैं 28 ग्राम्स, तो 0.5 में कितना होगा, यानी कि इसका हाफ में कितना होगा, दैट विल बी 14 ग्राम। समझ आया? Yes, sir. अब इस वाले का बता कितना होगा? Sir, 7 gram. 7 ग्राम, वेरी गुड। नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स में 14 होता है, तो 0.5 में कितना होगा, दैट वुड बी 7 ग्राम्स। 0.3 ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में कितना होगा? व्हाट वुड बी बेटा, व्हाट वुड बी द मास? डन? निकला बेटा? क्यों भाई? Sir, 7 gram. यस 7 ग्राम, क्योंकि पता है ना कि ये हाफ है। 1 मोल कितना होता है, 6.022 10 पावर 23। तो जाहिर सी बात है 3.011 कितना होगा, हाफ, यानी एक्चुअली दिस इज एक्चुअली 0.5 मोल्स। so 0.5 मोल्स इज इक्वल टू कितना होगा? तो आप देख सकते हो कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, नीचे आपको आंसर दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। मतलब आंसर इसमें दे रखे हैं कुछ एक्सरसाइज में,
तो 0.5 मोल में 7 ग्राम, मतलब एक्चुअली ये बिल्कुल ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, एक में मोल्स दे रखा है, एक में नंबर दे रखा है बस। और इसमें कितना होगा बेटा? सर रादुल्ला, 28। आजकल तो आप आजकल आप जवाब नहीं देते बेटा। यस सर। आप जवाब क्यों नहीं देते? क्यों भाई? बताइए क्या जवाब होगा इसका फोर्थ को? बेटा 6.022 10 raised to the power 23 का मतलब क्या हो? What does this statement means? It means 1 mole. 1 mole is equals to N2 के नंबर ऑफ 1 मोल N2 में कितना मास होगा बताइए? सर 28 ग्राम। 28 ग्राम। तो आंसर आ जाएगा 28 ग्राम। नहीं तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं? How will we be able to solve this question? So for this question what we need to do here is कि आपको गिवन है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला लिखवाया था? मैंने आपको बोला था कि 6 पॉइंट आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास इनटू Na एवोगाड्रोस नंबर। एक्चुअली ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na मैंने लिखवाया था अभी, तो आप चाहें तो इसको। अब आपको गिवन पार्टिकल्स कितने हैं? इट इज 6.022 into 10 raised to the power 23 is equals to मास आपको कैलकुलेट करना है अपॉन मोलर मास। N2 के गिवन है, N2 के याद रखिएगा, N2 के पार्टिकल किसके गिवन है? N2 के पार्टिकल गिवन है। ये किसके पार्टिकल्स हैं? N2 के, ना कि N के। सो यहाँ पर मोलर मास भी किसका आएगा? N2 का ही आएगा। ओके, कभी आप N लिखते हैं 28 into Na मतलब 6.022 into 10 power 23। ये चीज इससे यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे जीरो मत समझना है, टू बिकम 1। तो 1 is equals to mass up by 28, this will goes to that side, तो mass equals to कितना रहेगा? 28 grams। समझ आया? Got it? यस सर। चलिए देखिए इसी तरह के और क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2,
डन। क्या पूछा है इसमें? विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम्स आयरन। दोनों का मास आपको गिवन है, तो आप कैसे करेंगे? दोनों के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम मास कैलकुलेट करना है। द वन विच इज गोइंग टू हैव द मोर, यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि जिसमें ज्यादा आपके पास मोल्स होंगे, मैंने बोला किसी के पास 2 मोल्स है तो उसका मतलब हुआ 6.022 into 10 raised to the power 23 into 2। किसी के पास 5 मोल्स है तो उसका मतलब हुआ 5 into 6.022 into 10 power 23। तो एक्चुअल निकालने की जरूरत ही नहीं, आपको ऐसे ही कंपैरिजन कर लेंगे आप कि 2 into ज्यादा है कि 5 into ये ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लीजिए बस, मोर द नंबर ऑफ मोल्स मोर विल बी द नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको 100 ग्राम क्या गिवन है? 100 ग्राम आपको सोडियम 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 एंड आपको कितना गिवन है, और आपको आयरन कितना गिवन है? 100 ग्राम सोडियम एंड 100 ग्राम आयरन, बोथ आर 100 ग्राम्स। सो दोनों में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, गॉट इट? समझ आया? 100 ग्राम आपके पास आयरन है और 100 ही ग्राम आपके पास सोडियम है, तो दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू कितना होगा बताइए? क्या रखो यहाँ पर? बताइए। 100 गिवन मास है अपॉन आयरन का मास कितना है 56, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितना होगा बेटा? दैट इज 100 ग्राम गिवन मास है दोनों का अपॉन सोडियम का मोलर मास इज 23। अब बताइए जरा मुझे किसमें ज्यादा वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ मोल्स किसमें ज्यादा होंगे? जल्दी बताइए, फिर छुट्टी करते हैं। 2 क्वेश्चन और बना करके फटाफट से बोलिए बेटा। बोलिए। आमना, मिराज एंड मरीदुल्लाह, मास्किंग। हम लोग बंद करके चले गए। इज आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? लो, इज आई एम ऑडिबल? हेलो। Yes, sir. ओके, तो बताइए मुझे फटाफट से किसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे? Sir, in sodium. इन सोडियम। तो मोर द नंबर ऑफ मोल्स मोर विल बी द नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लिख देंगे इन इन 100 ग्राम सोडियम there are more number of atoms, there are more number of atoms, ज्यादा एटम्स होंगे। ये नहीं पूछा कितने होंगे, अगर कितने पूछता कितने हैं तो आप उसकी Na यानी एवोगैड्रो नंबर से और मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अभी नहीं पूछा तो बस आपसे कंपैरिजन करने के लिए पूछा है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग मोल बनेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग मोल बनेंगे, सॉरी 1.9 करके कुछ आएगा। सो चलो नेक्स्ट, ये हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट बताइए मुझे, कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस मतलब 32, वाटर 20 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे और इसमें कितने होंगे? पहले कार्बन डाइऑक्साइड का और सबका मोलर मास निकालिएगा कि CO2 का मोलर मास कितना होगा। CO2 का कैलकुलेट करना है तो CO2 का कितना होगा? एक कार्बन का होता है 12 और O2 का, एक ऑक्सीजन आइटम का होता है 16, तो 2 का कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। That will be 12 plus 32 will be equal to 44. So this is the 44 gram is the molar mass for carbon dioxide. Similarly, water का कैलकुलेट कीजिएगा। Similarly, O2 का तो पता ही है, that would be 16, 32 हो जाएगा। ओके,
सो फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताइए कितने मोल्स होंगे। Tell me, 12, how many moles are there in 12 gram of oxygen? That would be simple, 12 divided by 32. Sir, 0.375 moles. Okay, Mradullah, tell me, what is the answer of B? And you, Miraj, tell me the answer of C. Miraj, क्लास में हो? यस मरीदुल्ला, बताओ बेटा सेकंड का आंसर 8B का।
10 मिनट कैसे लग जाएगा? डन। फरीदुल्ला बेटा ये 18 होगा ना, 18 ग्राम। वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं तो H2 एक हाइड्रोजन का वेट होगा 1, तो 2 का कितना होगा 2 प्लस 16 एक ऑक्सीजन एटम का होता है, दिस इज 18 ग्राम इज द मोलर मास। सो 20/18 वुड बी द नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, और इसमें आपके पास हो जाएंगे 22/44, इट वुड बी 0.5। समझ आया? चलो आगे अगली क्लास में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, sir. Thank you.